Hare Krishna, dear devotees. I hope you all enjoyed the kirtan. So now we're going to move on to the next part of the program, and today we have a very special speaker, His Grace Anoop Misra Prabhu, who's joining us from Charlotte, North Carolina. So we're very, very fortunate to hear from him, and as you all know, that he has been part of this program from the very beginning. And he has also given lectures here before. So my father is going to briefly introduce him, and then we'll hear from Prabhuji. Hare Krishna, Vishnu Priya ji. Hare Krishna, we are so fortunate today. So we are getting Anoop Misra ji. So Prabhuji has been helping Baptist program since we started 2018. So Prabhuji was engineer here and he was working on one of the companies, but still he was practicing Krishna consciousness and he is following 4 regulative principles. And to spread this mission, actually Prabhuji was with us all the time, doing Harinam at the downtown and distributing books. He was always with us. And the center, when we had a center at Highland Road. So Prabhuji, one incident I have to tell everybody, then we can listen, we can learn something from Prabhuji, how humble he was. Comfortably, he was living one of the luxury apartment. But when he saw we are running the program, very small place, and we have a shortage of our funds, so Prabhuji moved our place to give the rent to support. So how much sacrifice he did. So this is the sign of pure devotee. And Prabhuji actually came from very aristocratic families. Brother also doctor. And his whole family members are very high educated. And all of them are supporting to spread this Krishna consciousness. So Prabhuji has vast knowledge on Srimad Bhagavatam as Amal Puran. So you know how Prabhupada actually brought Srimad Bhagavatam Vrindavan to USA. So Prabhuji, I don't have any qualification to glorify Prabhuji, but Prabhuji is very humble and he has so serving mentality, and we are so fortunate. So we are getting his blessings today. So Prabhuji will, I think, talk on Bhagavatam 7th canto, the character of Prahlad Maharaj, how Prahlad Maharaj performed devotion to teach whole world, whole universe, like how devotion is important for any age. So we're going to chant Hare Krishna Mahamantra to welcome Anoop Misra Prabhuji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol. Hare Krishna Prabhuji. Prabhuji, thank you. First of all, you give me a chance to speak something about. I don't have that much knowledge. Can you hear me, everyone? Yes, Prabhu, we can hear you. Okay, thank you. So Prabhuji is a high-class devotee, and he look everyone in the same internally, and that's why Prabhuji just glorifying. I have no quality. I am just learning. I learned many things from Prabhuji's association in Baton Rouge. So is Prabhuji's good quality that Prabhuji is speaking, but I think I have no quality. What Prabhuji say? I'm learning only, just trying to follow things to be good. That's only I'm just trying, but I think I am not that much good. What Prabhuji say, but just trying. So, but Prabhuji has a great soul, and Prabhuji just doing all those things. क्योंकि प्रभुजी का जो कॉन्शियसनेस है भक्ति में काफी आगे है, तो इसलिए प्रभुजी सबको उस तरह से सम्मान और आदर का भाव रखते हैं, इसलिए ऐसा कहा उन्होंने. इसलिए प्रभुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद. और प्रभुजी समय न नष्ट करते हुए प्रभुजी के आदेश है, मार्गदर्शन है कि कुछ भागवतम से किया जाए. मैं कुछ भागवतम का ज्ञाता नहीं हूँ,
मैं भागवतम को पढ़ रहा हूँ, कुछ समझ रहा हूँ, सब कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो कुछ समझ पा रहा हूँ, जो कुछ पढ़ पा रहा हूँ, उसके आधार पर मैं आप लोगों से भक्त प्रहलाद की कथा को आज शेयर करता हूँ। सो ये समय की बात है कि जय और विजय नाम के दो द्वारपाल श्री विष्णु जी के वहां वैकुंठ लोक में उनके द्वारपाल थे, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र शनकादि, जो चार उनके सत्र सनातन, जो उनके मानस पुत्र हैं, जो सबसे पहले मन से उन्होंने उत्पन्न किए ब्रह्मा जी ने, वो भक्ति भाव से दिन भर विचरण करते रहते थे। उनका एक बार मन हुआ कि चलो वैकुंठ में चलते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। तो वहां गए तो द्वारपाल जय और विजय ने उनको रोक दिया, कहा कि भगवान के आने से नहीं जा सकते आप। तो उन्होंने कहा, सनकादियों ने कहा कि भगवान का जो स्थल है, ये उनके चरण है, वो रजोगुण और तमोगुण में यहाँ का कोई स्थान नहीं, यहाँ तो सब सतोगुण के भाव में है सभी लोग। तो तुमने ये अपराध कर दिया है, तुमको भगवान से मिलने से मना कर दिया, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जाकर जन्म लो, वैकुंठ से तुम्हारा पतन हो जाएगा, क्योंकि तुमने वैष्णव को भगवान का दर्शन करने से रोका है। सो इसी क्रम में वो सबसे पहले कश्यप मुनि और दिति, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, प्रजापति कहते हैं जिनको, सप्तऋषि, तो उनके जो है पुत्र के रूप में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु पैदा हुए। हिरण्याकश्यपु बड़े थे और हिरण्याक्ष छोटे थे। तो हिरण्याक्ष जो असुर इन लोगों का गलत समय में गलत तरीके से ये लोग पैदा हुए, जिसकी वजह से इनको आसुरी प्रवृत्ति हो गई, उसका वर्णन अलग से है विशेष। बट अब इन्होंने जो है बहुत उत्पात मचाना शुरू कर दिया। हिरण्याक्ष ने पूरा सबको मारना शुरू कर दिया, पूरा विश्व में वो कर दिया, बट सब लोग त्राही त्राही। तो पृथ्वी भी, वो भी जो है भगवान ने उसमें 12 अवतार लेकर उसकी रक्षा किया और उसको अपने स्थान पर स्थापित किया, और हिरण्याक्ष को मार दिया भगवान विष्णु ने। अब यहाँ से इनकी दुश्मनी शुरू हो गई भगवान से। अब इनका द्रोह पैदा हो गया भगवान विष्णु से कि हमारे भाई को मार दिया है। अब इसके लिए भगवान जो है क्या करते हैं, भगवान जो है ब्राह्मणों की, गाय की और इस तरह की सबका जो करते हैं, जहां जहां पे उनके, जहां उनकी याचना से जो भगवान की याचना करते हैं, उन सबको इस पृथ्वी से नष्ट कर दो। ऐसा इन्होंने द्रोह किया कि मैं अपने भाई का बदला लूंगा। अब इन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, चूंकि ये राक्षसों के जो है वो थे सम्राट, वहां पे उसनों का साम्राज्य था। अब इस वजह से सब इनके राक्षस इनके आदेश पाकर से उत्पात मचाने लगे। बहुत से लोगों को बहुत कष्ट दिया, साधुओं को, संतों को, ब्राह्मणों को, गाय को, स्त्रियों को, जो भी थे, जो भगवान के विष्णु में आस्था रखते थे, बहुत कष्ट पहुंचाया उनको। और ऐसे करके एक दिन इनके मन में हुआ कि मैं नहीं जानता कि कल्प कितने समय का होता है, इसका एक गणना है शास्त्र में, बट हिरण्याकश्यपु के मन में हुआ कि जब कल्प समाप्त होगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तो उस समय क्या रह जाएगा, तो इसके लिए मैं क्या करूं, मैं ऐसी शक्ति प्राप्त कर लूं जिससे कि मैं ही सब कुछ हो जाऊं और सब कुछ नष्ट रहे, मैं ही सब कुछ रहूं। इस वजह से इसने जो है अपने जाके घोर तपस्या करना शुरू कर दिया। कहा कि मैं ऐसी तपस्या करूंगा, ऐसा अपने अंदर शक्ति अर्जित करूंगा जिससे कि मैं ही स्वयंभू हो जाऊं। और इस वजह से इसने घोर तपस्या करना शुरू कर दिया। तो उस तपस्या को इसने ऐसा किया, हिरण्याकश्यपु ने, कि वो बहुत सा इसमें, इसकी तपस्या से ज्वाला उत्पन्न हो गई, और उस ज्वाला से तमाम सब देवता और उनके सब जो पुर थे, उनके जो निवास थे, वो सब लपटों से झुलसने लगे, सब जलने लगे, जगह जगह सब लोग भागने लगे, सब लोग जाके छिप गए एक जगह पे, अपना सब स्थान छोड़ गए। इंद्र वगैरह सबको, केवल भगवान हरि, ब्रह्मा और महादेव को छोड़कर सभी देवता जाके यहाँ पर दरबार में वो करते थे, इसके यहाँ अपना भाग देते थे, टैक्स जैसे दे वसूलते हैं वैसे उस तरह से करते थे, भाग देते थे अपने उसका, यज्ञ वगैरह का। सो इस तरह से इसका वो बढ़ गया। तो अब सभी देवताओं ने कहा कि क्या करें, तो वो सभी लोग इस दुख से और इससे
निपटारा के लिए कि ऐसे तो सब जल जाएगा, हम लोग नष्ट हो जाएंगे। भगवान ब्रह्मा के शरण में गए वो, और ब्रह्मा जी से कहा कि इसका उपाय करिए। तो ब्रह्मा जी गए और उन्होंने हिरण्याकश्यप से कहा कि मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ जिससे कि ये रक्षा हो पाए और ये तपस्या खत्म कर दे, नहीं तो सब जल जाएगा। तो हिरण्याकश्यप जो है ने कहा ठीक है। तो उन्होंने उस वरदान मांगा कि हमको ऐसा वरदान दे दो अमर होने का कि हमको कोई मार न सके, कोई जानवर न मार सके, न कोई मनुष्य मार सके, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं। ऐसा विचित्र तपस्या उसने सब बुद्धि लगा कर लिया कि मैं मरूं ना किसी तरीके से, इसलिए मैं अमर हो जाऊं, फिर मैं वो बात में चढ़ा रहूं। तो अब चूंकि ब्रह्मा जी ने कहा था, तो ब्रह्मा जी ने उसको जो वो है वो वरदान प्राप्त दे दिया और उसको वरदान प्राप्त हो गया। जब उसको वरदान प्राप्त हो गया तो उस हिसाब से वो, इसी बीच में क्या हुआ कि इंद्र ने मौका पाकर उसकी पत्नी कयाधु को, यहाँ तक कि अभी कयाधु जो हिरण्याकश्यप की वह पत्नी है, उनको 4 पुत्र हुए वैसे, लेकिन ये चौथे पुत्र भक्त प्रहलाद उनके पेट में थे उस समय, जब उनको जो है वो बंदी बनाकर ले जाने लगा मौका पाकर इंद्र। तो नारद मुनि बीच में मिले और नारद मुनि ने कहा कि तुम ये कैसा अपराध कर रहे हो, तुम एक स्त्री को बंधक बना के क्यों ले जा रहे हो, इसका तो कोई अपराध नहीं है। तो उनके समझाने से इंद्र ने उसको छोड़ दिया और फिर वो जाकर रही नारद के आश्रम में रही कयाधु। उस आश्रम के दौरान उन्होंने भागवत, जब वो भक्त प्रहलाद उनके पेट में ही थे, माता के गर्भ में, कयाधु माता के, तो उन्होंने उनको भागवत कथा सुनाई, भागवत की चीजें, बहुत अच्छी चीज भागवत धर्म दिखाया, जिससे कि जो संस्कार है भक्त प्रहलाद का वो भागवत भागवत भागवतमय हो गया। तो अब जब वो पैदा हुए तो उन्होंने उसको भेजा उनको कि ये सब है, तो उन्होंने कई बार अपने पिता पिता ने उनको गोद में रखकर प्यार करा, और उस बीच में उन्होंने जो संवाद किया उसमें उन्होंने, भक्त प्रहलाद ने भगवान की बात कही, भगवान की शरण की बात कही कि ये भगवान की शरण में ही जाना सर्वश्रेष्ठ है। और हिरण्याकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते थे, इसलिए वो जो है उसको गोदी से पटक दिया, कहा कि तुम्हारे शत्रु की बात करते हो। फिर कहा कि ये पता नहीं कहाँ से शिक्षा है। तो उन्होंने कहा कि ये हम इसको जो है अपने असुर कुल की जो शिक्षा है, अपने राज साम्राज्य की, जो हमको ही भगवान माने, विष्णु को न माने, इस तरह की शिक्षा के लिए उन्होंने उसको कहा कि ये गुरुकुल में इसको भेजो, शिक्षा दो। तो उस समय जो उनके गुरुकुल शुक्र, जो असुरों के गुरु शुक्राचार्य थे, उनके 2 पुत्र वो भी पुरोहित का काम करते थे। उनका नाम था संड और अमर्क। ये 2 शंकराचार्य के पुत्र थे, वो भी पुरोहित करते थे। उस समय वो गुरुकुल अपना चलाते थे वहां। उसमें जो है इनको ले गए और वहां पर भी इनको जो है, एक दिन ऐसा हुआ कि ये भागवत धर्म था, तो उसमें और भी असुर बालक रहते थे, उसमें पढ़ते पढ़ते थे। तो एक दिन ये आचार्य लोग कुछ बाहर गए और भक्त प्रहलाद ने कहा कि उन असुरों को अपनी ज्ञान देना शुरू कर दिया। कहा कि भागवत भगवान ही सबका सार है, मैं और मेरे में इसमें कोई अंतर नहीं करना चाहिए, इसमें आदमी को जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए, भगवान को समर्पित करना चाहिए, भागवत भगवान ही सब कुछ है। इस तरह की तमाम शिक्षा बहुत लंबी है भागवत में। मूल रूप में यह है कि उन्होंने भागवत भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर भगवान को उनको ही समर्पित होने की बात कही। तो उन जो है असुर बालकों ने कहा कि तुम्हें ये शिक्षा कैसे मिली, तुमको ज्ञान कैसे मिला। तो उन्होंने ये बताया कि ऐसा हुआ था, मेरी माता को इंद्र ले जा रहे थे और नारद मुनि ने उनको बुलाकर अपने आश्रम में किया और उस समय उन्होंने ये शिक्षा की जिससे मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसके बाद जब गुरुकुल से भक्त प्रहलाद एक दिन फिर गए तो पिता ने बड़े हर्ष से, हिरण्याकश्यप ने उनको अपने गोदी में लिया और फिर बात करना शुरू कर दिया।
और फिर बात करना शुरू कर दिया, तो फिर उन्होंने उसको जो है फिर उस से पटक दिया और आदेश दिया कि इसको मार डालो, क्योंकि ये राजद्रोह है एक तरह से उनके हिसाब से। विष्णु की पूजा करना, विष्णु का प्रशंसा करना, विष्णु में विश्वास रखना और उस तरह का जो भी निषिद्ध कार्य है उसको करना उनके राज्य में। तो उनके सैनिकों ने, दैत्यों ने उनको बहुत यातनाएं दी, विष दिया, उससे वो नहीं मरे, पहाड़ से पटका, उस तरह नहीं मरे, और उनको तरह तरह से यातनाएं दी, लेकिन वो मरे नहीं भगवान की रक्षा से। इसके बाद फिर जो है उनको शिक्षा के लिए फिर कहा, फिर वो गए, लेकिन फिर लौट कर आए तो उनको फिर ऐसा ही रहा। तो एक दिन जो है बहुत क्रोधित हुआ वो, जब उन्होंने उसको गोदी से पटक दिया भक्त प्रहलाद को, तो उस समय वो बहुत क्रोध से तलवार उसने उठाया मारने के लिए अपने पुत्र को, भक्त को, प्रहलाद को, उसमें कि क्या है तुम्हारा, विष्णु कहाँ है, कैसे है, और क्या तुम्हारा सब कह रहे हो सब जगह उसी का है, सब उसी का है, मैं हूँ, मेरा सब कुछ है, अंदर बाहर सब कुछ वही है, कहाँ पे है, इस खंभे में है क्या, उस महल में। ऐसा करके ही उसने जो है ऐसा एक खंभे की तरफ मारा ही कुछ, वैसे ही उसमें से बहुत ही दिव्य प्रकाश निकला, ऐसा कि सब कुछ जैसे कुछ आंखें चौंधिया जाए, कुछ दिखाई न दे, और उसमें से ऐसा विचित्र जीव उत्पन्न हुआ जो आधा सिंह और आधा मानव का रूप था। उसकी कई भुजाएं थीं, उसका बाल सुनहरे रंग का था और बहुत बड़े दांत थे, बहुत विशाल काय शरीर था, और बहुत जोर की आवाज हुई जिससे कि सब बहुत डर गए। वहां पर पूरा असुर बिल्कुल सुन्न हो गया, इतना मतलब भयानक था वो। तो वो नरसिंह भगवान का अवतार हुआ उस समय। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। तो इस वजह से फिर वहां पर उन्होंने, नरसिंह भगवान ने उससे युद्ध किया और उसको जो है पकड़कर उनके जो नाखून थे उससे उन्होंने, जो घर की चौखट थी उस पे, न दिन था न रात थी, दिन बैठने के समय की बात है, उसका जो उदर है वो फाड़ डाला हिरण्यकश्यपु का, और जिससे उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी अतड़ियों को लेकर अपने गले में डाल लिया। और बहुत गुस्से में थे, उनका गुस्सा शांत न हो, इतना गुस्सा हो गया उनको कि उनके भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसने ऐसा किया। तो उस अवतार में उनको बहुत क्रोध था, नरसिंह अवतार में। फिर जाकर वो कुछ देर के बाद उसके सिंहासन पर बैठ गए, नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर, और फिर वहां से उनका क्रोध शांत न हो तो बहुत से लोगों ने उनकी स्तुति की, और उसमें क्रम से कई लोगों ने स्तुति की। मैं मोटे तौर पे थोड़ा भागवत से देख के बताता हूँ कि कितने लोगों ने स्तुति की। उसमें तमाम तरह के देवताओं ने की, और या इसमें फिर कश्यपु ने कहा, इसके बाद जा रहा है, सेकेंड थोड़ा टाइम लग रहा है। कई चैप्टर है इसमें, या ये लिखा है, ये अथमोष्टम अध्याय, दैट मीन ये 8th चैप्टर है सप्तम स्कंद का, उसमें ये कई लोगों ने इसमें भगवान की स्तुति की है। तो इसमें जो है ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, रुद्र ने, रुद्र मतलब महादेव भगवान, इंद्र ने फिर किया स्तुति, ऋषियों ने स्तुति की, पितरों ने स्तुति की, सिद्धों ने स्तुति की, विद्याधरों ने स्तुति की, नागों ने स्तुति की, मनुओं ने भगवान का स्तुति किया, नरसिंह भगवान का, प्रजापतियों ने स्तुति की, गंधर्वों ने स्तुति की, चारणों ने उनकी स्तुति की, यक्षों ने की, किम पुरुषों ने उनकी स्तुति की, तालिकों ने उनकी स्तुति की, किन्नरों ने उनकी स्तुति की, भगवान के पार्षदों ने की।
फिर भी उनका जो है शांत नहीं हुआ क्रोध। तब अंत में जाकर भक्त प्रहलाद को भगवान ने कहा, तब वो जाकर उन्होंने स्तुति की और जिससे उनका शांत हुआ क्रोध। और फिर उन्होंने जो है संवाद किया, भक्त प्रहलाद का नरसिंह भगवान से। और नरसिंह भगवान ने कहा कि बताओ पुत्र, तुमको क्या दिया जाए, तुम वरदान मांगो, तुमको मैं क्या दूं। तो चूंकि वो भक्त थे तो भगवान उनको मिले साक्षात, तो उनसे उन्होंने कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए आपकी भक्ति के अलावा। फिर भी भगवान ने कहा उनसे कि तुमको एक मनवंतर तक यहाँ राज्य करना है। एक मनवंतर तक का राज्य के लिए उन्होंने बिना मांगे ही वरदान दिया और उनको तरह का उपदेश देकर वह स्वयं जो है वहां से अंतर्ध्यान हो गया। तो इस तरह से भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, अपने भक्तों की। और जिस तरह से भगवान के प्रति समर्पित होने पर भगवान उस तरह से लोगों की रक्षा करते हैं। एक छोटे से बालक का भी भगवान रक्षा करते हैं, इसमें कोई शक्ति की जरूरत नहीं। भगवान के स्मरण से भगवान सबकी रक्षा करते हैं। ऐसी तमाम कथाएं हैं, उसमें से एक कथा ये भी है इस तरह से। तो यही पूरा एक तरह से संक्षिप्त में भक्त प्रहलाद की कथा है। भागवत के 7th कैंटो के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 10 तक, 1 to 10, ये सारा कुछ डिटेलिंग में है। सो मैं अब इस बात को, अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा यहाँ, और आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। मेरी गलतियों को क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं बहुत नॉलेजेबल नहीं हूँ, भागवत का वक्ता नहीं हूँ, न इसका अधिकारी हूँ। केवल जो कुछ मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ वही चीज सबसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhu. Thank you so much for such a wonderful class on the glories of Lord Nrsingadev and Prahlad Maharaj. We have so much to learn from this pastime, and I would first like to open it up for any questions or comments, any realizations from the audience, either here or the Zoom audience. Anyone would like to say anything? I want to, if you can read वो स्तुति जो की थी ना, डिफरेंट, वो संस्कृत में पढ़ के बताइए, एक या दो स्तुति कोई भी। Mataji is asking if you can read one or two of the stutis that you mentioned in Sanskrit. Mataji, you asking me to for Sanskrit slokam? Few lines on Sanskrit, stuti. Okay, Mataji. तो स्तुति में माताजी जो नरसिंहा स्तुति, some of just like ब्रह्मा जी and other offer स्तुतिस, उसमें से कोई एक स्तुति को मैं पढ़ूंगा। Okay. मैं थोड़ा चैप्टर खोल रहा हूँ माताजी, मुझे स्तुति ज्ञान रटा हुआ नहीं है, इसलिए मैं पढ़कर पढ़ूंगा। Yeah, that's okay, Prabhu. Take your time. कि इसमें मैं पहले से तैयार नहीं था कि मैं यही स्तुति पढ़ना है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ढूंढ रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की उसमें है, नमोस्तमस्नन्ताय दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुण स्वलीलाया संदन्ते व्यात्मने। इसमें ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता, आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय यथोचित ढंग से करते हैं, फिर भी आप
उनसे कोई संबंध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। एक और पढ़ा जाए। ओके, सो भगवान शंकर ने उनका जो है रुद्र ने किया, नमोस्तस्नान्ताय तुरंत सक्तये, नहीं ये दूसरा है, कोप कालो युगांत अस्ते हस्तो यम सुरो पल्लकः तत्सुतम पाहु पश्रंतम भक्तम ते भक्त वत्सल। श्री रुद्र ने कहा, आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है तो वो भी मारा जा चुका, उसका पुत्र आपकी शरण में आया है। भक्तवत्सल प्रभु, आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए। ऐसा भगवान रुद्र ने जो है नरसिंह भगवान का स्तुति किया है। बहुत अच्छी। Thank you so much, Prabhu. Also, there is Nrsimha Kavach by Prahlad Maharaj and also Lord Brahma to Lord Nrsimhadev. So you can chant Nrsimha Kavach because it will really help when we're remembering Lord Nrsimhadev, because he is our protector. So chanting Nrsimha Kavach is very, very important for us. So I will share that with everyone, and you can recite it every day for protection and blessings of Lord Nrsimhadev. And there's also 108 names of Lord Nrsimhadev that you can chant. We chant it whenever it's a special occasion, or when we are praying for the well-being and health of other devotees, and we offer tulsi and flowers to Lord Nrsimhadev chanting the 108 names. So there's many, many glories of Lord Nrsimhadev and how he protects his devotees. So it's very important that we always remember the Lord during every step of our life, because he is our biggest protector in all of our obstacles and sufferings. So thank you, Prabhu. If there is no other questions or comments, then we can move on to the final part of the program, which is Arati. So Can I ask one question with yes, our of devotees, course. dear devotees? Whatever I just, maybe I'm not very good speaker or preacher, but whatever I just speak here about Bhakt Prahlad story, I just trying to understand what every one of us at least understand one thing. So उससे ये होगा कि हम लोगों ने क्या सीखा। एक्चुअली मॉरल ऑफ द स्टोरी समथिंग कुछ होता है ना, ये कथाएं ऐसे तो नहीं है कि सुन लिया इधर से निकाल दिया है ना। ये कथाओं का कुछ तो प्रभाव है कि इसका हमारे जीवन में महत्व है। So just trying to understand if one by one we can share with us what we learn, and इस स्टोरी से हम लोगों ने क्या सीखा, या उससे हमारा क्या एक जो ऑब्जेक्टिव है माइंड का वो निकल के आया। ऐसा कुछ आप लोग शेयर करें तो उससे हमें भी लाभ होगा। Who would like to start first? Yeah. Hare Krishna, everybody. I am Bhavesh. So, from this story, what I understand is, like when you submit to God completely, then like God will appear to you in a form of the solution to your problem. Because like here, Narasimha Swami Avatar was not there before all this incident happened. But when Bhakta Prahlada like submitted his whole life, and like every time he was chanting Lord Vishnu's name, and there was a problem in front of him, like that was a problem of the whole world. So to solve that problem, Vishnuji had took an avatar in exact
in exact form that kind of like resolves that problem. So like, so if we submit ourselves to God, God will manifest in a form that suits us. So that's how submission works. Like I think like that's what I understood from this story. Prabhuji, I would say fully surrendered. Fully surrendered. Yes. Yeah. So suppose sometime we have half belief. We should be have 100% belief, not even 0.001% less, 100% even more. So that's something. Yeah, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Thank you. Anyone next, please? Anyone else want to share what your takeaway from this? Anyone from the Zoom audience? Anyone else want to? मीरा माता जी, आप बोलना चाहेंगे कुछ? मेरे में तो ये लगता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें भगवान की भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। और जितने मर्जी मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स हो और जितनी मर्जी हमें कष्ट उठाने पड़े, सो वी हैव टू कंटिन्यू भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। और अगर हम उसको करते रहेंगे भक्ति, तो भगवान हमें जरूर प्रोटेक्ट करेंगे हर एक परिस्थिति में। Thank you, Mataji. Mataji, surrender is very important because Bhai Prahlad surrendered himself to the God. Even he has the very diverse situation because someone want to kill him. At that moment also, he will not change his faith from the God. So that level up, we have to go at least something. I mean, I cannot say that level, but at least we have to learn to be fully surrendered in all the circumstances. Thank you. Thank you. I saw Rico back. So Rico sometimes asks question. So actually very good example. At our audience, Rico is a American boy always joining with us. So I'll mention one verse from Bhagavatam, 7th canto, 6th chapter, verse number 1. So इधर बताता है কৌমার আচরেত প্রাজ্ঞ ধর্মান ভগবতন ইহ দুর্লভ মনুষ্যম জন্ম ততপি অধ্রুবম অর্থদম. So here is mentioning actually Prahlad Maharaj started his bhakti at the age of 7 or early age before that. So we don't have any sometimes we think, okay, abhi samay nahi hai, we don't have, when we'll get older, then we'll start bhakti. So here is mentioning the Kaumarat Asarat Pragya Dharman Bhagavatam Iho Durlabham Manusham. So this human life is very rare. It is very rare opportunity we got this human birth, because we can see surrounding us so many other living entities. Prabhupada very often is mentioning the dog, cats, and other living entities. They don't understand who am I, what is my destination, what should I do, what is my duty. Only human being can ask this question, and human being can deliver themselves by asking and following the rules, regulation, and human being can perform the bhakti. So we are so fortunate, any age, any time, any circumstances, we can do bhakti.
So we are not sure how long we will be in this material world. There are many examples also you also experiencing every day. So this lesson actually give us very good sign how we are fortunate. So we should not waste our valuable time as much as we can follow and perform the bhakti. So I'm asking Rico, you want to share anything? No, thank you, Prabhuji. The class was in Hindi, so I couldn't understand. So you can tell me more about it. Yeah, actually, you left, therefore we continue in Hindi. So I was requesting Prabhuji say something in English, but you left anyway. But next time we'll continue in English, and you can read Srimad Bhagavatam 7th canto, all how Hiranyakashipu appeared, how Hiranyakashipu gave lot of troubles in this world, and how Nishingadev manifest, how Prahlad played the role, everything in 7th canto in Bhagavatam. And if you need, I can give you one Bhagavatam set for you. I have next time when you tell me when I can meet with you, I'll give you one set of Bhagavatam. And the Prahlad character is very important. Is even Sriman Mahaprabhu always listening for Prahlad, character of Prahlad and Maharaj, and character of Dhruva Maharaj, because they started bhakti early age. So it is big lesson for us. We should not waste our time, though we are more than 40, 50 or some on 60. But if someone is passing the childhood, still we should think, we should follow, we should perform some bhakti. So thank you so much. Dr. Ravidan, do you like to share anything, or are you busy, Prabhuji? Hare Krishna. No, I'm listening, meditating on what has been said, and don't have much to add, but I think we all can experience. कहते हैं ना हिंदी में प्रभु की माया बहुत अपरंपार है. So we saw the manifestation of this Narsim avatar, and also like you are saying, the story tells how Prahlad at such a young age, this is by God's grace, it happens to some, and one should be having faith to get that, and I think we should be striving for that. It's a great lesson in Bhagavatam, and like that so many others in the Bhagavatam. Hare Krishna. I'm meditating on it. It's very nice. Thank you for the good presentation. Very nice. Hare Krishna. Hare Krishna.